Hello everyone, I heartily welcome to all of you in a JPYQS of series of Fluid Mechanics Part 4. Let's start the solution of problem. Question number first, see front of you. The data is like that. Consider a water jar of radius r that has water fill up to a height h and is capped on a stand of height h in figure to a hole of radius small r. This small r is very less than as compared to capital R as its bottom. The water leaks out of and a stream of the water coming down towards the ground has a shape like a funnel as shown in figure. If the radius of the cross section of water stream when it hits the ground is x, then what is the formula of x? तो ये भी सेम प्रॉब्लम है जो हमने आगे किया हुआ है। यहाँ आपको x और r की टर्म में का आंसर फाइंड करने के लिए, बाकी ऐसा एक सेम प्रॉब्लम अगर जेई हमारी ये जो सीरीज चल रही है इसका पार्ट 3 में आप देखोगे तो इसमें आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ पे ये जो वो कंटेनर दिया है का हम बात करें तो इसका रेडियस आपको पहले दिया है कैपिटल आर, ठीक है, और यहाँ एक स्मॉल होल है, इसका डायमीटर 2r है, कंटेनर का रेडियस कैपिटल आर है, हाइट h है। जब लिक्विड यहाँ नीचे आएगा तो ये जो सेक्शन है वो नेरो होता जाएगा। इसका रीजन है आपको ऑलरेडी मैंने बताया था, जैसे जैसे हम मान लो वेलोसिटी v1 है, जब लिक्विड यहाँ पहुंचेगा तो वेलोसिटी v2 हो, यहाँ v2 लेस होता है, v2 इज मोर एज कम्पेयर टू 1। तो यहाँ एरिया जो है वो a1 ज़्यादा होगा अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो जैसे जैसे लिक्विड नीचे जाएगा वैसे वैसे a2 कम होता जाएगा, तभी वेलोसिटी बढ़ता है। तो यहाँ आपको ये रेडियस का x से मान लो, वो x का फॉर्मूला फाइंड करना है, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। पहले आप वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं कि वेलोसिटी का फॉर्मूला वहां क्या। तो वेलोसिटी यहाँ, वेलोसिटी एट बॉटम या तो एच डेप्थ पे वेलोसिटी आपको फाइंड करना है। तो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ये फॉर्मूला है। तो v2 इज इक्वल टू अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस 2gh, क्या आ जाएगा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हमारे पास आ गया है। अब v1 स्क्वायर क्या होगा, जो यहाँ वेलोसिटी होगा v1, जैसे जैसे लिक्विड यहाँ से जब लिक्विड बाहर निकलता है तो इसका वेलोसिटी होता है v1। तो v1 फाइंड करना है, तो v1 इक्वल टू इनिशियल यहाँ वेलोसिटी 0 होगा v0, यहाँ वेलोसिटी v1 है और यहाँ वेलोसिटी v2 है। तो v1 कितना होगा, तो v1 आपको फाइंड करना है, v1 स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इक्वल टू 2gh, विल बिकम 2g अंडर रूट h, क्योंकि यहाँ आपको ये h दिया है देखो, और यहाँ है स्मॉल h, ठीक है। चलिए तो यहाँ आप v2 में इसका वैल्यू रख दो, तो ये भी हो जाएगा आपका 2g कॉमन आ जाएगा और h प्लस h, ऐसे आप लिख सकते हैं। v2 आ गया। नाउ अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी equation you cannot a1 v1 is equal to a2 v2। a1 यानी कि एरिया ऑफ दिस पाइप, then this is the pi r square, velocity this is under root 2gh, and a2 is the pi x square, velocity this is 2g the root अंडर रूट में 2g ब्रैकेट h प्लस h, पाई पाई कैंसल आउट,
If we make the subject as a x square, then r square is equal to under root में 2g h upon 2g h plus h. Under root 2g cancel out, then x is equal to r. h upon h plus h, एक अंडर रूट था और एक और दूसरा आया तो it will become 1/4. So this is the correct answer. Here you can see the option number A is the correct answer. Option A is the correct answer of this problem. Let's move on. Another problem. Problem number 29. Data is like that. Question number 30 is given an open vessel, open glass tube. The open glass tube is immersed in a mercury in such a way that length of 8 centimeter extends above the mercury level. Like that, you have given a beaker of mercury. It is filled with mercury, and question is asked. First, we leave the glass tube. The mercury, its outside level is 8 centimeter. Means ki here it is air, and this air pressure due to atmosphere, this is your P1, and this pressure is due to atmosphere, and this is 76 centimeter of Hg. This is pressure due to atmosphere because the end of the glass tube, it is open, and it is connected with air, so there will be air here, and this atmospheric pressure is something like 76 centimeter of Hg. We already studied in a theory class. Again, आगे देखते हैं क्या बोला है. 8 centimeter extend above the mercury level. The open end of the tube is then closed and sealed. ये जो open end है इसको हमने seal कर दिया. क्या कर दिया? Seal. And tube is raised vertically up by additional 46 centimeter. And this tube is taken out from the mercury tube another 46 centimeter. Means total height अगर आप देखें तो हमने कितना बाहर लाए इसको? 54 सेंटीमीटर. कितना बाहर लाए? 54 सेंटीमीटर तो बाहर लाए. तो इसकी वजह से होगा क्या कि ये जो एयर यहाँ पे ट्रैप था का वॉल्यूम बढ़ जाएगा. वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो वहां प्रेशर में भी वेरिएशन आएगा और कुछ मर्क्यूरी यहाँ तक ऊपर आ गया. मान लो 1 सेंटीमीटर जो हाइट है वो मर्क्यूरी अपने लेवल से बढ़ गया. तो ये जो वाटर कॉलम है इसका हाइट कितना हुआ? दिस इज 54 माइनस एक्स. और यहाँ जो प्रेशर बनेगा दिस प्रेशर इज P2. ये कितना प्रेशर होगा? P2. और ये P2 प्रेशर जो होता है वही हमें फाइंड करना है. तो प्रेशर कितना होगा? वो प्रेशर फाइंड करने के लिए हमारे पास एक तो हाइट था 6, बट यहाँ देखो ये मरकरी इतना ऊपर आ गया ना, तो ये प्रेशर हो जाएगा 76 माइनस. P2 कितना होगा? 76 माइनस एक्स. कितना प्रेशर होगा? तो सेम हियर, यहाँ पे भी हम बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ हम लिख सकते हैं P1V1 इज इक्वल टू P2V2. P1 इज द 76 वॉल्यूम. अगर पहले देखा जाए तो एरिया इंटू हाइट, तो हमें इसमें मेन जो है अगर हम लिखे एरिया इंटू height h1 and P2 is pressure. Second situation 76 minus x. The volume is area into h2. Area into h2. We cancel out area. 76 into 8 is equal to 76 minus x. And h2 is what? H2 is the height column of
air column, height of the air column. This is 54. This is 54 minus x. Now, if we multiply this 76 into 8, this becomes 608. 76 into 54, this will become 4104 minus 76 x, and minus x into this will come 54 minus x. This is minus minus plus x square. If we solve this, this equation is become like x square minus 130x plus 3496 is equal to 0. और अगर आप इसको सॉल्व करोगे इक्वेशन से ax square plus bx plus c is equal to 0, and comparing this equation with this standard equation, then you will get solution by this formula minus b plus or minus the root delta by 2a. Use this formula, you will get x is equal to approximate 38 centimeter. कितना आएगा x? 38 centimeter. This is not answer. आपको पूछा है what will be the length of air column above mercury in the tube now. सेकंड केस में कितना होगा? ट्यूब कॉलम, या तो आप ट्यूब एयर कॉलम in a second situation, this is 54 minus 38, you will get 16 centimeter. This is your final answer. Here you can check option A is the correct. तो ये है solution of problem number 30. Let's move on a problem number 31 answer. तो ये है in the questions, data is in front of you, the diagram shown in the figure, the difference in the two tubes of nanometer is 5 cm. देखो क्वेश्चन में ही बोला है कि यहाँ जो आपको डायग्राम दिया है कि भाई नैनोमीटर ट्यूब है के बीच का ये जो डिफरेंस है, एक में लिक्विड एक कॉलम में ज़्यादा है, बी में कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको क्लियरली दिख रहा है ये सेक्शन में कि भाई एरिया A1 विच इज लेस, तो हियर वेलोसिटी इज मोर। वेलोसिटी मोर होता है तो प्रेशर कम हो जाता है, तो यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा। और बी सेक्शन की बात की जाए तो वहाँ एरिया A2 इज मोर, तो वेलोसिटी V2 इज लेस एंड P2 इज मोर, तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा। मीन्स के दो कॉलम के बीच जो लिक्विड का हाइट का डिफरेंस है, ठीक है, तो इससे आप प्रेशर डिफरेंस निकाल सकते हो। एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूब एट ए area is 6 mm square. This is given 6 mm square, and the A2 is given this the 10 mm square. Respectively, the rate at which the water flow through the tube is. यहाँ आपको कुछ नहीं रेट पूछा है, तो सिंपल है, आपके पास वेलोसिटी आ गया कोई भी, then will the multiply with area, then you will get the rate of flow from this tube. Let's start the solution. How can it will solve? You can see here. So first of all, we will find velocity. For the velocity, we will use the formula of Bernoulli equation. We can use two equations. One is Bernoulli and another is, तो ये है continuity equation. You cannot A1 V1 is equal to A2 V2. V not V2 by V1, then it will A1 by A2. A1 is 6 and A2 is 10. So we will get V2 is equal to 6 by 10 V1. Now
If we applying Bernoulli equation, according to Bernoulli's equation, V1 plus 1 by 2 rho V1 square is equal to 2 plus 1 by 2 rho V square. यहाँ हमें क्लियरली पता चल रहा है P2 is greater than P1. So we can take P2 minus P1. P2 minus P1 is equal to 1 by 2 rho V1 square minus square. P2 minus P1 is given. This rho GH. Rho. We put the value of V2 here. And V1 square is come common. Put 6, 36 and 100. Rho is cancel out. V1 square is equal to, this will become 100 minus 36 यानी 64 by 100. हम यहाँ पे लिख सकते हैं 100 into 2 यानी 200. 200 to G into H upon 64. 200 into G. G हम ले सकते हैं 10. And height यानी find 2 10 raised to minus 2 upon 64. This 2 0 are cancel out. This is 10 50 50 to 2 यानी 100 by 64. 100 by 64 V1 square. V1 is equal to 10 by 8 meter. This is the velocity of liquid. Now we want to find the rate at which water flow through the tube is. Tube flow rate, formula of flow rate, this is A1 V1 and area is given. Section A, this is 6 mm square यानी 6 into 10 raised to minus 6. Velocity is 10 by 8. Here 2 cancel, this will become 4 and this 3. 3 by 4 into 10 raised to minus 5. 0.75 into 10 raised to minus 5 meter cube per second. If we more evaluate, then it will come 10 raised to minus 6 meter cube per second. और इसको सिंप्लीफाई करें तो 75 इंटू सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दो, सेंटीमीटर पर सेकंड. मीटर क्यूब की जगह पे आ जाएगा 10 रेज टू 6 सेंटीमीटर क्यूब. 10 रेज टू 6 plus and 10 raised to minus 6, both are cancel out, so we'll get 7.5 centimeter cube per second. Correct option is, from the data is, you can see here 7.5 cc per second. Option number A is the correct answer. Let's move on another problem. Problem number 32 is like that. A cylindrical vessel of cross section A contains water to height h. There is a hole in the bottom of radius A.
टाइम इन विच इट विल बी एम्प्टाइड, एम्प्टाइड यानी कि कौन से टाइम पे वो खाली हो जाएगा। कुछ डेटा देख सकते हो इस तरह से है। लिक्विड will have with height h, and at the bottom there will be a hole, and the radius of this hole is a. The liquid is leak out from this hole, and at which time the whole liquid is out of tank, तो वो टाइम बताना है। चलिए बहुत ही आसान है। रेट ऑफ फॉलिंग वाटर, जैसे जैसे लिक्विड यहाँ से बाहर आएगा वैसे वैसे लिक्विड का जो रेट है, हाइट है, वो कम होता जाएगा। रेट ऑफ फॉलिंग वाटर लेवल is dh by dt, dh by dt, this is velocity भी आप बोल सकते हो। flow rate is also called flow rate. Flow rate is what? Q is equal to a1 v1 is equal to a2 v2। यहाँ आप लिख सकते हो a into dh by dt is equal to area of second hole is, हाँ यहाँ साइन माइनस आएगा क्यों, कम हो रहा है, ठीक है। and area of this hole is pi a square and velocity at the root 2gh। जब यहाँ से लिक्विड बाहर निकलेगा तो कितनी वेलोसिटी से बाहर आएगा, v स्क्वेयर माइनस वी नॉट स्क्वेयर इज इक्वल टू 2ad, ये वाला फॉर्मूला लगा लो। यहाँ वेलोसिटी तो है लिक्विड की, तो यहाँ v हो जाएगा अंडर रूट 2gh। तो h डेप्थ से लिक्विड बाहर आएगा तो कितना होगा, अंडर रूट 2gh। तो मैंने वहां से ये फॉर्मूला रख दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ मैं dt को सामने लेके जाओ और बाकी सब एक साइड कर दो। पाई ए अपॉन अंडर रूट 2g और पाई ए स्क्वेयर इंटू डी एच बाई रूट एच, ऐसे लिखा जाए। अलग कर दो आप। t इज इक्वल टू 0 टाइम पे लिक्विड की हाइट एच है, t इज इक्वल टू t टाइम पे पूरा लिक्विड एम्प्टाइड होना यानी कि पूरा लीक आउट हो जाएगा तो 0 हाइट। चलिए तो बहुत ही आसान है, dt का t हो जाएगा a अपॉन पाई ए स्क्वायर अंडर रूट 2g इज द कॉन्स्टेंट वैल्यू, h रेस टू 1/2 है वो ऊपर जाएगा तो माइनस, और आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो h रेस टू -2 प्लस -1/2 प्लस 1, लिमिट इज 0 एंड आगे साइन है माइनस आएगा, यहाँ साइन है वो माइनस। ये अपॉन पाई ए स्क्वायर अंडर रूट 2g माइनस, और -1/2 प्लस 1/2 यानी 2, तो ये 2 भी यहाँ आ जाएगा। यहाँ पावर बचेगा h रेस टू 1/2 यानी कि अंडर रूट में h, एक बार 0 और एक बार h। एक बार 2a बाई पाई ए स्क्वेयर अंडर रूट 2g 0 माइनस अंडर रूट h। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। t इज इक्वल टू 2a अपॉन पाई ए स्क्वेयर अंडर रूट h बाई, यहाँ से रूट टू भी हम कैंसल कर सकते, हाँ रूट 2 आ जाएगा तो 2h बाई g अंडर रूट 2h बाई g। द करेक्ट ऑप्शन a अपॉन अंडर रूट 2 पाई ए स्क्वेयर अंडर रूट 2 पाई ए स्क्वेयर, या रूट 2 यहाँ इन्होंने बाहर लिखा हुआ है, रूट टू पाई रूट टू रूट टू, हाँ पाई ए स्क्वेयर रूट 2 इस यहाँ पे लीजिए, ऐसे लिखा हुआ है। ये
अपॉन पाई ए स्क्वायर रूट 2 बाहर आ गया तो अंडर रूट एच बाई, यानी कि करेक्ट ऑप्शन यहाँ दिख रहा है बी। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। of 1.5 meter per second through a horizontal tube of cross-sectional area 10 raised to minus 2 meters where you are trying to stop the flow by your palm. Assuming that the water stop immediately after hitting the palm, the minimum force that you must exert should be. तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है डेली लाइफ में, क्या हम ऐसा यूज करते हैं कि एक पाइप है, इसमें से वाटर बाहर आ रहा है, हम इसको हमारे हाथ से क्या कर देते हैं, इसको स्टॉप कर देते हैं। पाम पाम हमने यूज किया और इसको क्या कर दिया, स्टॉप। कितना फोर्स लगाया होगा, तो फोर्स फाइंड करना है। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। मास ऑफ वाटर निकाल लो पहले। मास ऑफ वाटर m यानी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी यानी डेंसिटी ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम इज व्हाट, एरिया इनटू लेंथ। यहाँ आपको लेंथ ऑफ द पाइप इज गिवन 1 मीटर ले लेते हैं हम। लेंथ है पाइप का 1 मीटर में से बाहर आ रहा है, उसके लिए हमें फाइंड। तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10 raised to 3, area of this pipe is 10 raised to minus 2 and this is 1. And then we get this is the 10 kg mass. Now according to Newton's second law of Newton's law of motion, F is equal to dp by dt, यानी कि dv by dt, because momentum is what, mass into velocity. Mass is 10 kg, velocity it is also given, this is 1.5, then it will come 15 Newton. कितना फोर्स लगेगा, 15 न्यूटन। हियर यू कैन सी द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर 4 था वो भी कंप्लीट हुआ। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन।